ઓકે. જય સચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજન નીરળ મને લાગી. દાદા ભજન લાગી. ભક્તિ રસમાં લાગું છે. ભક્તિ રસમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. સાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. કિનારે માને જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારો બન્યો વકાર. જીવન મારું બન્યું અકાર. દાદા શરણ રહેવું છે. દાદા ચરણ મારે છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. મારી આજ્ઞા મારે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા પિતરાગીની દીક્ષા પામી. જેવો મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે.
દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. Jai Sachidanand. Okay, we will do now Kalamo. Okay, Darsal number 1. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો ક્યારેય પણ અહમ ન દુભાય, કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Nitakshiba number 2. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિઓ આપો. Okay, Chinai number 3. સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી યા આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Prahar number 4. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Sriya Didi number 5. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, ગંધેલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, ગંધેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુચુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Didi number 6. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ, અગર, નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Devam. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Kushi Ahmedabad number 8. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Okay, Divya Avyay Pune number 9. Okay, very good. Jai Sachidanand Bihari Dada. Bihari Dada. Bihari Dada, Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद. त्रिमंत्र बुलाइए प्लीज. नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, ओ हरिताणम, નમો અરિહંતાણમ, नमो दानम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो वज्रायाण, નમો વદ્દાયાણમ, नमो
नमो लोय सौव ऐतो पंच मुक्कारो ऐसो पंचनमुखारो सप्पा वप्पना सवपावपनाशनो कलान मंगलम च संवेसे पद्मं हवै मंगलम परमं हवये मंगलम मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। थोड़ा સરસ તૈયાર થઈ ગયા 9 કલમમાં શું કહ્યું? क्या बोला आपने? છોકરાઓ 9 કલમમાં સરસ તૈયાર થઈ ફાઇન बिहारी दादा आपको ब्रेक होता है तो मैं वीडियो बंद करता हूँ। બધા છોકરાઓને ધન્યવાદ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ખૂબ સરસ રીતે કલમો બોલ્યા છે કઈ છે सबको હવે सबको सुना देता है? ओके ओके बिहारी दादा ओके वेरी गुड। એને उसको नजीक आए हाँ ओके वेरी गुड। हाँ दररोज ये बोलते हैं बिहारी दादा वेरी गुड है ये। ફટાફટ માં બધાય તરત ખાલી તમે નંબર બોલ્યા જેને જે નંબર આવે ફટાફટ બધા બોલી ગયા यस 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 या एक दो बाकी है, दरअसल को अभी बहुत प्रैक्टिस करने का होता है बाकी सबको आता है राइट अच्छा राइट दरअसल दरअसल नहीं, मुझे आता है पूरा। पूरा आ गया क्या बात है ओके वेरी गुड ओके श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठा और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ आज? आज मेरा कलम 1 ब्रेक हो गया था। कलम 1 क्या हुआ था? मम्मी ने जब मैं स्कूल से आई तब मेरी टर्म 1 एग्जाम आने वाली है, तो हमारे मैम ने बोला कि जिनको बस से जा रहे हो स्कूल, तो हमको स्कूल में 2 घंटे बैठना है। तो फिर मुझको बैठने थे, मेरे फ्रेंड्स और सब उधर थे, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, घर आके पढ़ाई करो। तो फिर मुझको अभाव आ गया कि क्यों मैं नहीं बैठ सकती, और फिर मैंने माना कि ठीक है, मैं घर आ जाऊंगी एग्जाम खत्म होने के बाद। ओके वेरी गुड। और बिहारी दादा बाद में बात करेंगे। ओके वेरी गुड। ओके चिनाई। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी अक्षर समझाते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे मैंने आपका बच्चे, हम हैं है आपके आपके बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल के हैं सच्चे। पर भी है कच्चे।
तो फिर भी भी है है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छा, ओके। जय सच्चिदानंद। ओके, गुजराती માં સેપરેશન દાદા પ્રેયર વિધિ ખુશી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, વિધિ જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, વિધિ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, વિધિ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। दर्शना हिंदी में। शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग है, दर्शना अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रिलेटिव है, दर्शना टेम्परेरी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट है और दर्शना टेम्परेरी है। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके, तो अभी बच्चे लोग क्विकली स्टेटस लेगा, बाद में ऐसा सिचुएशन आता है श्रेया दीदी का, तो गियारी दादा थोड़ी बात करेंगे। ओके ओके, वेरी क्विकली। आज स्टडीज कितना दिन से स्टडी का नहीं किया, आज कितना पॉजिटिव और कुछ गलती किया वो बताना स्टडी में। ओके, वेरी गुड। श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा नेगेटिव ये है स्टडीज में कि आज मैं मैथ करते वक्त मैं मम्मी के साथ बात करने लग गई थी वो एग्जाम का सिलेबस के बारे में। और पॉजिटिव ये है कि मैंने आज सर ने पूछा था कि ये वर्कशीट मैंने खत्म किया है, तो मैंने अच्छे से खत्म किया था। वेरी गुड। देवम। जय सच्चिदानंद। आज ट्यूशन में मेरे 2 आवर्स का लेक्चर्स होता है। सो मैम ने बोला था कि एसएस में जितने 22 क्वेश्चन आंसर्स है लॉन्ग, वो उतने लर्न कर लो। सो मैंने बोला कि इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं लर्न नहीं कर रहा। सो उसके बाद ये नेगेटिव था मेरा। और पॉजिटिव में था कि जब मैम ने इसका रिटर्न टेस्ट लिया था तो मुझे सब आए थे उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो थे। किसमें कम आया? नहीं, टेस्ट ली थी तो उसमें सब आया था। ओके, वेरी गुड। ओके, चिन्मय। मैथ्स में समझो पास में जोर से। आज मैंने स्टडीज में ये पॉजिटिव था कि मैं आज मैथ्स में 15 सेंस थे और आज मुझे थोड़ा होमवर्क ज्यादा था, तो इसलिए आज मैं तमिल की स्टडी भी नहीं कर पाई, वो मेरा नेगेटिव है। करिश्मा। आज मैंने रिपोर्ट नहीं भेजा है। के खुशी। जय सच्चिदानंद। आज मेरा नेगेटिव स्कूल में जब टीचर मैथ्स के सम ले रही थी तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मुझे देर से समझ में आया, ये मेरा नेगेटिव था। और पॉजिटिव, मैम ने जो मुझे साइंस में पढ़ने के लिए कहा था तो मैंने उसे क्लियरली मिस्टेक नहीं, ऐसा मैंने रीड किया था। गीताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। आज मेरा स्कूल में नेगेटिव थॉट ये था कि हमको ट्यूसडे को हमारे साइंस के टीचर बोल के गए थे कि मंडे को साइंस की 5 बुक लेके आने की चेकिंग है, तो मेरी पूरी बुक कंप्लीट है और जब मैम लेने ही नहीं है तो नेगेटिव थॉट यह है कि एक तो बुक लाने को बोला और चेक करने नहीं आया। और पॉजिटिव थॉट ये था कि आज मैं 30 मिनट एक्स्ट्रा स्टडी भी की थी और बाद में पॉजिटिव थॉट, वो नेगेटिव थॉट का पॉजिटिव आया था कि मैम को कुछ काम होगा ज्यादा जरूरी तो नहीं आए होंगे लेने बुक्स। वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे पॉजिटिव में ये आया था कि आज मैंने एसएस की एक्स्ट्रा स्टडीज की थी, तो उसमें मैंने 1 चैप्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वो बोलने का होता है। क्या पढ़ा था? हाँ, वो क्वेश्चन आंसर सब पढ़ा था। इसके बारे में है, साइंस के बारे में थे कि वो मूवी में के बारे में थे, क्या था?
स्टेट के बारे में था। विधि दीदी आपने किसने बोला बोलने का? नहीं, लेकिन वो राज्य बोल रही थी, उसे इंग्लिश नहीं आता था इसलिए। नहीं आपको तो आप उसके बिना खाओ, उसके साथ स्कूल में जाओ। वो छोटी है न, तो उसको जो लाड करना घर में बैठ के बिठा दो और आप सब करने का। दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे नेगेटिव ये आया था कि स्कूल में जब वो ट्यूशन में जब मेरा 2 आवर्स का लेक्चर होता है ट्यूशन में, तो जब मैम हिंदी का पढ़ा रहे थे तो तब मुझे डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि वो दूसरे बैच वाले वो लोग आवाज कर रहे थे इसलिए। तो आप हिंदी में ट्यूशन लेते हैं? नहीं, मतलब हमारे सब्जेक्ट सारे होते हैं, उसमें हिंदी भी आता है ट्यूशन में? हाँ। ओके अव्यय। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे को नेगेटिव आज ये आया था कि मैम जब इश्विका समझा रही थी तो मैंने बराबर ध्यान नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा लेट समझ में आया, तो मुझे उसमें नेगेटिव हो गया था। और आज मैं मैथ्स का चैप्टर कर रहा था तो उसमें वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, तो उसमें भी नेगेटिव हो गया। और आज पॉजिटिव नहीं हुआ था स्टडी में। ओके मिस शास्त्री। जय सच्चिदानंद। आज मुझे नेगेटिव थॉट ऐसा आया था कि आज होमवर्क बहुत कम था और रीडिंग ही करना था, तो मैंने सोचा था, मेरे मन में ऐसा हुआ था कि आज पढ़ाई नहीं करनी है, मम्मी को बोल देंगे कि आज नहीं करना है, पर वो चोर को मैंने आज गेट आउट किया और पढ़ाई की थी। वेरी गुड। कभी कभी ऐसे बोलो बच्चे लोग, कभी कभी ऐसे करो कि आज खाने का ही नहीं मम्मी, ऐसे भी कुछ करना। ओके, ट्राई करो क्या होता है। ओके पुणे। आज मुझे स्टडीज में नेगेटिव ये आया था कि जब मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही थी तो बाहर बच्चे खेल रहे थे तो मैं उधर डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। और पॉजिटिव ये आया था कि आज मैंने मैथ्स में जितने भी सम किए थे वो सब करेक्ट करे थे। ओके कुशल भैया। जय सच्चिदानंद। आज मेरा पॉजिटिव पढ़ाई में ये था कि मैम ने कहा था कि हमें सारा होमवर्क कंप्लीट करके लाना, तो मैंने वो किया था, उसमें पॉजिटिव थॉट था। और आज मेरा नेगेटिव थॉट। ओके आई थिंक ओके अब सब आ गए अभी। तो बिहारी दादा आपने सुना ये पॉजिटिव नेगेटिव, और बाद में वो थोड़ी बातें करो और बाद में श्रेया दीदी के साथ बात करो। क्या भाव आया था, मम्मी के अभाव आया था। बिहारी दादा बिहारी दादा सुनाई गया? ओके बातें हैं। तुम्हारा ब्रेक होता है, मैं वीडियो बंद करता हूँ 1 मिनट। हाँ मैं नजदीक आता हूँ। ओके अभी बोलो। नेगेटिव आता है जहाँ पर भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है कि हमारे मन पर पड़ती है, हमारे खुद पड़ती है। और पॉजिटिव आता है तो हम खुश हो जाते हैं। नहीं ब्रेक होता है, सब सुनाई देता है बच्चे लोग? नहीं बिहारी दादा, ओ बहुत ब्रेक होता है। बिहारी जी नहीं તમારું બહુ બ્રેક થાય છે, કનેક્શન નથી બરાબર. હવે અહીં તો બરાબર બતાવે છે, જીઓનું કનેક્શન ફૂલ ટાવર બતાવે. એમ દીપકાનજી जय सच्चिदानंद। ये क्यों आप
बिहारी दादा का क्या प्रॉब्लम है? I think so. Connection is bad over there. ओके, तो विल ट्राई। ओके, किसी ने बताया कि हेडफोन आपके पास है तो निकाल देना का। बिहारी जी, रखता हूँ, ब्लूटूथ If रखता हूँ। without headphone, he can't hear. ओ ब्लूटूथ है, सुनाई देता है? हाँ, अभी अच्छा बोलो। हाँ, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। नेगेटिव में से पॉजिटिव करना वो हमारा पुरुषार्थ है। जहाँ जहाँ पर जिसके बारे में नेगेटिव थॉट आता है, नेगेटिव व्यवहार होता है, तो उसको ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान की शक्ति से वो पॉजिटिव करना वो हमारा पुरुषार्थ है। समझे सब? समझे सब? सबका म्यूट क्यों है? व्हाई एवरीबॉडी इज म्यूटिंग? सब श्रेया दीदी समझे? हाँ। हाँ बोलो बिहारी। आया? रजनी दादा उनका वॉइस क्रैक हो रहा है। थैंक यू। बिहारी दादा ने क्या बोला कि जब नेगेटिव आता है तब पॉजिटिव करने का, तो ये बिहारी दादा ऐसे कैसे कर सकता है नेगेटिव में से पॉजिटिव? वहां पर वो पॉजिटिव वो हमारा पुरुषार्थ से नेगेटिव नहीं आता है बिहारी दादा। दीपकांत जी प्लीज हेल्प। जय सच्चिदानंद। ફૂલ ટાવર બહુ બ્રેક થાય છે બિહારી આનંદજી। ટાવર તો ફૂલ બતાવે છે ભાઈ, શું કરું? તો શું કરું? दीपकांत जी, what can you do? Yeah, do I continue now? No, ask him what he can do. No, there is nothing he can do actually. ગુજરાતીમાં બોલો, ગુજરાતીમાં। બિહારી આનંદજી, તમે કેવી રીતે છો? પેલા ત્યાંના વાઈફાઈ પર છો કે તમારા ડેટા પર છો? પોતાના જીઓ પર છું। ના, પણ ત્યાં વાઈફાઈ નથી કામ કરતું? હા, બિહારી આનંદજી, ત્યાં વાઈફાઈ નથી કામ કરતું? ત્યાં વાઈફાઈ નથી। हाँ, नेगेटिव नु पॉजिटिव કેવી રીતના કરો, कैसे कर सकता है आप बताइए। જ્ઞાન કરીને આપણી પાસે જે સાચી સંત છે એ સંતને नहीं, अभी भी अच्छा नहीं है दीपकांत जी। एक स्पॉट जो राइट स्पॉट મળે ને તો સરસ થઈ જાય। થોડું ખસવું બોલજો। પોઝિટિવ એ અપેક્ષાએ છે અને નેગેટિવ ને આપણા પ્રમાણે કરવું, આપણા હિત પ્રમાણે કરવું। हिंदी बिहारी आनंद जी। वो नेगेटिव को हमारे हित में करना वो पुरुषार्थ है, और ये पुरुषार्थ हमें करते रहने का है। तो ये पुरुषार्थ जहाँ जहाँ पर भी जाओगे आप, वहाँ नेगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। नेगेटिव संजोग भी आएंगे, पॉजिटिव संजोग भी आएंगे। नेगेटिव विचार वाले भी आएंगे, पॉजिटिव विचार वाले भी आएंगे, और हमारे मन में भी नेगेटिव आएगा और कभी पॉजिटिव आता है। तो जब जब नेगेटिव आता है
वहाँ ज्ञान समझ से उसको पॉजिटिव करने का है। बच्चे लोग समझ में आया? हाँ तो एक एग्जाम्पल दो ना, ये अभी सब सुना ना सबने, इसमें से कुछ एग्जाम्पल दो कैसे नेगेटिव का पॉजिटिव हो सकता है। बराबर। बिहारी आनंद जी, हाँ ये जो एग्जाम्पल है कि बाजू वाले शोर कर रहे थे और वो हाँ फोकस नहीं कर पा रहे थे, बराबर। तो उसमें कैसे पॉजिटिव ले? बाजू वाले को तो हम रोक नहीं सकते हैं, रोकने जाएंगे तो ज्यादा करेंगे, तो हमको ही कुछ एडजस्टमेंट लेना पड़ता है। दरवाजा बंद करो या कान में रुई डाल दो, ये हमारा एडजस्टमेंट है। नहीं, ये और तो जहाँ तक क्लासरूम में था बिहारी आनंद जी, वो क्लासरूम में था दरअसल, राइट? इवन दर्शना, जब तक आपका ध्यान होता है, वो आप सुनते हो तभी सुनाई देता है, आपका अटेंशन वहाँ है, आप ध्यान से सुनते हो तभी सुनाई देगा। तो जो भी है वो में से नेगेटिव में से बाहर निकलने का है और पुरुषार्थ करने का है। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, हाँ ये अर्जुन को सिर्फ वो मछली की आंख कैसे दिखती थी? हाँ, क्योंकि उसका ध्येय, उसका लक्ष्य फिक्स हो गया था, उसको सिर्फ पक्षी की आंख ही दिखाई देती, पूरा पक्षी दिखाई नहीं देता था, पेड़ भी दिखाई नहीं देता था, नाली भी दिखाई नहीं देती थी, तो सिर्फ आंख को विजना है, आंख ही उसका लक्ष्य था, ये उसको सिर्फ आंख ही दिखाई देती है। उनका लक्ष्य पक्का था, उनका ध्येय पक्का था, इसलिए ध्येय को सिद्ध कर सके। बराबर बच्चे लोग? हाँ। लक्ष्य क्या चीज होता है, किसको मालूम है? तो किसको मालूम है, पहले हाथ ऊंचा करो। ओके खुशहाल, लक्ष्य का क्या मीनिंग होता है? लक्ष्य मतलब हमारा एम, जैसे कि हमें पढ़ाई में ये चीज पूरी कंप्लीट करनी है तो हमें उसका एम रखना चाहिए कि मैं पहले ये कंप्लीट करूंगा फिर ही खेलूंगा या कुछ और, तो हमारा एम होना चाहिए। कि दरअसल हाँ, लक्ष्य मतलब हमारा गोल। कैसे रखने का होता है? इताक्षी बा, लक्ष्य मतलब हमारा ध्येय। नो लेकिन आपके एग्जाम्पल में आप इसका कैसे उपयोग करेंगे? कैसे लक्ष्य कैसे रखेंगे आप? जैसे कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे हर रोज ग्रामर में 3 एक्सरसाइज करनी ही है, तो मैं दररोज करूँ कंपलसरी, तो वो मेरा लक्ष्य हुआ कि मुझे करनी ही है। जब करते हैं तब क्या लक्ष्य रखते हैं, वो देखने का है ना। तब ऐसा लगता है कि मुझे ये 3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट करनी ही है। नो, पर लक्ष्य में क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, वो ध्यान में रखना हो, वो लक्ष्य बोलता है। बाद में अपना श्रेया बा कुछ भी गड़बड़ करे उधर नहीं जाएगा अपना नजर, और उसको लक्ष्य बोलता है। प्रहर, हाँ, दे सकते हैं। लक्ष्य का एग्जाम्पल जैसे कि हमने लक्ष्य, जैसे कि मुझे होमवर्क अपने टाइम पे सबमिट करना है, मैंने ऐसा गोल रखा है तो फिर वो करना ही पड़ेगा कंपलसरी। नहीं वो तो ठीक है, जब करते हैं, ये क्या हुआ, क्लासरूम में था, डिस्टर्बेंस आया, तो लक्ष्य क्या करने का, वो बिहारी दादा ने बताया ना। बिहारी बात थोड़ी बात करो उसमें कि लक्ष्य कैसे पढ़ने में, खेलने में कैसे रख सकता है।
बिहारी दादा हाँ सुना दिया मेरा क्वेश्चन? हाँ सुनाई दिया। ओके तो आपको कितना परसेंटेज लाना है वो आप लक्ष्य तय कर सकते हो, कितना परसेंटेज लाना है, लाना है 95 लेना है, कितना परसेंटेज आप तय करते हो कि पढ़ने का लाना है, वो आपका लक्ष्य होगा। और लक्ष्य के हिसाब से भी हमारा सब व्यवहार चलता है, व्यवहार होता है। और समझ में आया? और सुनाई देता है? जी खुशी बोलो, ये सब म्यूट पर हाँ दरअसल व्हाई यू कीप इट म्यूट? हाँ समझ में आया। ओके तो अभी आप विजय जी आप ऑफिस में जाएगा आपको कि नंबर्स लिखने का, तो कैसे लक्ष्य रखेंगे आप? और पास में तो सब आवाज बोझ होता है, पप्पा बुच्ची चिल्लाता है, काका चिल्लाता है, तो क्या करेंगे? नहीं, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो फिर उसमें से मेरा ध्यान नहीं जाएगा। हाँ वही है, वो बाहर में कुछ होता है वो ध्यान नहीं रखने का। ओके वेरी गुड। दीपक दादा ठीक है? ओके ओके अभी बिहारी दादा लक्ष्य का मतलब क्या है कि ये सब बातें होगी, लेकिन कैसे अर्जुन को सिर्फ आंखें ही दिखाई दी, दूसरी सब चीजें थी, लेकिन उनका निश्चय जो लक्ष्य हासिल करने के लिए था वो पक्का था। वैसे हमारा भी लक्ष्य पक्का हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियां हमें नेगेटिविटी खड़ी होगी, लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हमारे लक्ष्य को, हमारे फोकस को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। समझ में आया? हाँ ओके वेरी और गुड। और ऐसी बात है कि आप ये सब नेगेटिविटी को हैंडल करके पॉजिटिव करने में को सीख जाएंगे आसानी से, आसानी से। चल मैं ठीक है यही ठीक सच्चिदानंद। है जैसे ओके बिहारी दादा ये श्रेया दीदी के साथ बात करो, उसको क्या हो गया था, अभाव आ गया था, उसमें क्या करना मांगता है? अभाव का पॉजिटिव कैसे करने का है? ये बात है, सवाल रिया। हाँ या बिहारी दादा अभी चला गया आपका साउंड। नहीं, लेकिन क्या अभाव क्या हुआ था, बोलो। हाँ, वो जब टर्म 1 के एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ था तो बस में मैं बस से घर जाती हूँ और आती हूँ, तो फिर बस के लिए बोला था कि जो लोग बस से जाना है तो वो 2 घंटे स्कूल में ही बैठेंगे, और ऑप्शन भी है कि हम कार से जा सकते। तो फिर मुझको 2 घंटे स्कूल में रहना था, तो मैंने मम्मी ने बोला कि मैं 2 घंटे स्कूल में रह सकती हूँ, मैं उधर पढ़ाई करूंगी। तो मम्मी ने फिर बोला कि नहीं, तू घर आके पढ़, उधर तू नहीं पढ़ पाएगी, सब बातें करेंगे। तो फिर मुझको अभाव आ गया, किसके ऊपर अभाव आ गया? मम्मी के ऊपर। अब बताओ बिहारी आनंद जी। तो वाले ने, टीचर ने आपको 2 घंटा वहां बैठने के लिए बोला है क्लास के लिए, बराबर? आपको बैठना भी था, आपने को पूछा तो जो समझ में आएगा इस हिसाब से बोलेंगे ना कि नहीं तू घर आके मेहनत कर। हाँ और आपको स्कूल में बैठना था, बराबर ना? हाँ हाँ हाँ। तो जो भी व्यवहार हो रहा है, जो व्यवहार हुआ तो पसंद नहीं है तो भी घर पे जाना पड़ा,
अगर रुकने का होते तो 2 घंटे के बाद बस तो स्कूल में जो पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास सभी को पढ़ाते हैं, वो हमारे हित में होता है। लेकिन मम्मी को कुछ ऐसा लगा, इसकी वजह से उन्होंने बोला कि इधर आ जा। तो वो मम्मी का व्यू पॉइंट है। क्या है? व्यू पॉइंट। क्या है? व्यू कहाँ पॉइंट। आता है वो हम समझा नहीं पाए और मम्मी समझ भी नहीं पाए। समझे? हाँ। हाँ, तो मम्मी को पूरा संजोग रखने नहीं आता है, तो उसके हिसाब से बोलते कि तू घर पे आ जा, घर पे आ। हाँ। इसमें जो मम्मी के प्रति नेगेटिव आया, तो वहां पर उसको पॉजिटिव करना है। इस तरह कि भाई यहाँ के संजोग क्या है, यहाँ टीचर ने क्यों रोका है, वो मम्मी को घर बैठे बैठे समझ में नहीं आता है। जो क्या है जो समझ नहीं पाती है, इसलिए वो घर पे बुला लेती। घर आना नहीं है, वहां में पढ़ना है। तो जो भी मम्मी के प्रति नेगेटिव हुआ, उसको पॉजिटिव करने का है कि मुझे जो कुछ बोला है, जो कुछ भी बताया है, तो उसको जो समझ में आया, इस हिसाब से उन्होंने बताया। सिचुएशन हकीकत में क्या थी वो आप समझा नहीं पाए। बराबर? तो हाँ। जो नेगेटिव आया है उसको पॉजिटिव करने का है कि भाई मैं ये संजोग के बीच में हूँ और मम्मी घर पे है, तो हकीकत संजोग क्या है वो उसको समझ में नहीं आएगा, वो गैस भी नहीं कर पाएगी। तो पॉजिटिव कर देता है ज्ञान से। का भी दोष नहीं है, हमारा भी दोष नहीं है, फिर भी मम्मी की आज्ञा की वजह से घर जाना पड़ता है, तो वो हमारा हिसाब। प्रिया? हाँ। से वो को पॉजिटिव कर देने का। हाँ। जब और ओके मालूम पड़ गया श्रेया? तो अभी दूसरी दफा ध्यान रखने का। ओके हाँ। या थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके अभी हम टाइम हो गया है तो अभी हम पद सुनेंगे। ओके अभी बिहारी दादा आप हिताक्षी बाग का आज पद सुनेंगे। हाँ ओके हिताक्षी जय बा सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મને દાદા ભગવાન મળ્યા પછી બધી રંગ બિલીફો છૂટી ગઈ। મને દાદા ભગવાન મળ્યા પછી બધી રંગ બિલીફો છૂટી ગઈ। હવે સતના સંગ પણ થયા પછી બંધેલી ભ્રમણા છૂટી ગઈ। મને દાદા ભગવાન મળ્યા પછી બધી રંગ બિલીફો છૂટી ગઈ। બેરી છોરા સંબંધ સાપેક્ષ હતું રાગી દ્વેષી સંકલન। મૃગ જળની પાછળ વિષમ ક્રમ પ્રાંતિની બંગડી નંદવે ગઈ। મને દાદા ભગવાન મળ્યા પછી બધી રંગ બિલીફો છૂટી ગઈ। जिन सगला मारा मानेला ऋणानु बंधी हिसाबो हता। હું એક અને કલ્પિત વણગઢ અગણીથી શૃંખલા તૂટી ગઈ। મને દાદા ભગવાન મળ્યા પછી બધી રંગ બિલીફો છૂટી ગઈ।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। आपने बहुत बढ़िया पद गाया, अच्छी तरह से गाया। तो आपको मालूम है इसका मीनिंग क्या होता है? आपको क्या हाँ कि जानने में मिला इसमें से? हाँ कि जब हमें दादा भगवान मिले उसके बाद जो हमारी जो नेगेटिविटी थी, यानी कि एक तो पहले नेगेटिविटी यही आती थी कि ये मैं करती हूँ, ये मैं करती हूँ, ये सब कुछ मैं करती हूँ। वो पहले नेगेटिविटी थी, वो जैसे कुसंग ये सब कुछ छूट गया जब हमें दादा भगवान मिले। और जब हमें दादा का ज्ञान समझ में आया, तो तब जो हमारी जो ये मैं हेताक्ष हूँ, ये सब कुछ छूट जाता है। ऐसा ही रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बस है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो बिहारी दादा, अभी हम बड़े के साथ ये बात करेंगे।